वाल्मीकि किस प्रकार बताते हैं, उसकी आज हम पाठ करेंगे। तो दशरथ राज्य का वर्णन है, जैसा पिछली बार आया था। उन्होंने नगर में कैसे धन धान्य से भरपूर है, और महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं लिखा कि अयोध्या नगरी जो है वह महर्षि मनु ने स्वयं बसाई थी, और उसमें नारियों की क्या स्थिति है, धन धान्य की क्या स्थिति है, भवन कितने विशाल हैं और समृद्ध हैं लोग, बाजार कैसे हैं, हरियाली कैसी है, उद्यानों का वर्णन आया, और दुकानों पर किस प्रकार अंबार लगे हुए हैं, ऐसा भी थोड़ा उल्लेख था। तो आज देखिए क्या कहते हैं वाल्मीकि, और अयोध्या में थोड़ा और घूमने के लिए हम सबके साथ तैयार रहिए, आपको आनंद आएगा। दशरथ राज्य का वर्णन। अब अयोध्या में महाराज दशरथ का राज्य कैसे बसा हुआ है उसकी झलक देखेंगे। तस्यां पुर्याम् अयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रहः दशरथो महातेजाः वसन् जगत पालयत्। उस अयोध्या नगरी में, अब थोड़ा और हम भीतर प्रवेश कर रहे हैं नगर के, कि लोग कैसे हैं। तो उस अयोध्या नगरी में वेदार्थ को जानने वाले, सब वस्तुओं का संग्रह करने वाले महातेजस्वी राजा दशरथ प्रजा का पालन करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, वेदार्थ को जानने वाले से यानी ब्राह्मण जो विद्या युक्त हैं, दशरथ के बारे में जी, तो कि वेदार्थ को जानने वाले अर्थात उनमें ब्राह्मणत्व के गुण हैं राजा दशरथ में। फिर वे वस्तुओं का संग्रह, उनके पास सब सामग्री भरपूर है। ऐसा नहीं है कि वे केवल विद्या, क्योंकि राजा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अधिकाधिक गुण संपन्न हो। ऐसा नहीं कि केवल शारीरिक शक्ति से संपन्न हो, या केवल उसके पास भौतिक वस्तुओं का संग्रह बड़ा है। ऐसा नहीं है कि वे महातेजस्वी भी हैं, शारीरिक बल से भी समृद्ध हैं। वस्तुओं का संग्रह यानी उनके पास सारा साम्राज्य उनका भरपूर है, सभी प्रकार की समृद्धि है उनके राज्य में, और वे स्वयं वेदार्थ को जानने वाले हैं, जो ब्राह्मणत्व का गुण जिसे कहते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अर्थात उनके पास वह सबसे पहला जो आर्यत्व का, इसीलिए आप जानते होंगे पहले महिलाएं अपने पति को आर्यपुत्र कहकर संबोधित करती थी। आर्य का अर्थ है ईश्वर पुत्र, नोबल मनुष्य। तो हम सब आर्य हैं, हमारे देश का नाम आर्यावर्त था। और तो इस तरह से महाराज दशरथ जो हैं वे सभी गुणों से संपन्न हैं। आचार्य जी। Having described the Ayodhya capital city that we did last week, today we begin to understand what is the quality of the king, the emperor Dasharath. We are told that he is a scholar of the Vedas, because as you know, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, these are three constituents of any society. They are called as Dvij. Dvij in the sense they are twice born. Once we are born from our mother's womb. Second time when we enter into a Gurukul or Acharya Kul, then the teacher who educates us, and this is a very high tradition, when we are admitted into an Acharya Kul, the Acharya, the Guru, takes a vow that he will take care of this child
as a mother takes care of her child in her womb. So that is such a closest relationship between the mother and yet to be born child. And that is what the teacher is proclaiming, that I will take care of this little child who has come to me for education, and I will be protecting him from all the outside forces as a mother protects her child in her womb. And then when the education is complete, that is called Samavartan, then it is as if this educated young man or young woman is taking birth in the society for the second time. So that is what is called as Dvij, who went through that Vedic education. So obviously, the king Dashrath went through that education process, being a Kshatriya, and he is being referred to as Vedvit. He was aware of the Vedic principles. He had direct link with the Vedic literature in under the supervision of a qualified acharya. And as we'll see later, besides a council of ministers as his advisors, he had Acharya Vasisht as a spiritual guide, who is a permanent Acharya in his something above the council of ministers. So that was the tradition, that a learned Acharya is always in hand to give advice to the king in affairs of the state. So that was the first adjective that has been used with King Dashrath, Vedvit. He was a knowledgeable scholar of that. Then he said is, for to run the state of affairs, you have to have all the economic assets, and he was more inclined to collect all those resources so that, and his third adjective is, he was always concerned about the well-being of the subjects, and that has been referred to as Jagadapalaya, means he took care of their all the subjects, all the citizens, as a mother or father would take. That is what a father is described as, Palan Karta. So in the same manner, like a father or a mother will take care of their children, Dashrath was doing that for all his subjects. तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मा धर्मात्मात्मानो बहुश्रुतः नरास्तुष्टा धनैश्वः स्वैरलुब्धा सत्यवादिनः। मनुष्यों के जो समाज कैसा है इसका भी वर्णन आएगा। पिछली बार हमने नगर की स्थापत्य कला और इन सब चीजों को देखा, उनके धन धान्य संपन्न किस तरह से हैं इसे देखा। अब हम धीरे धीरे वह समाज कैसा है और लोगों का आचरण कैसा है, परस्पर व्यवहार कैसा है, धीरे धीरे अब समाज के वर्णन की ओर महर्षि वाल्मीकि बढ़ रहे हैं। वे कहते हैं, उस पुरी में अर्थात अयोध्यापुरी में, उस नगरी में सब मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, अपने अपने धन से संतुष्ट, निर्लोभ और सत्यवादी थे। हमने यह बात प्रारंभ से ही कही है कि श्री राम के लिए कहा जाता है कि वे धर्म का मूर्तिमान रूप थे। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो पहले सर्ग के साथ ही मैंने उल्लेख भी किया था कि महर्षि मनु का काल जो है राम से पहले का काल है, और महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। उन लक्षणों को हम बीच में बार बार दोहराएंगे, क्योंकि आज के समय में धर्म को लेकर बहुत सी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। लोग समझते हैं कि व्यक्तिगत रूप से पूजा पद्धति या प्रार्थना करना या कुछ इस तरह के कार्य क्रियाकांड इत्यादि धर्म है, किंतु महर्षि मनु ने धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं उन्हें जानकर आप देखेंगे कि
धर्म का उन सब जो प्रचलित मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, विचार हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मनुष्य के जो गुण हैं, किसी मनुष्य को उन गुणों के आधार पर तय होता है कि कौन मनुष्य कितना धर्मात्मा है। तो ताकि इस बात का प्रचार प्रसार हो सके और सभी हम लोग अपने अपने मन में इस बात को अधिक जान सकें कि धर्म वस्तुतः होता क्या है, मैं बार बार महर्षि मनु के उन 10 लक्षणों का बीच बीच में उल्लेख करती चलूंगी। और श्री राम के संदर्भ में हमने बार बार यह बात कही कि वे धर्म का मूर्तिमान रूप है, क्योंकि वे एक ऐसे मनुष्य हमारे समाज में इतिहास पुरुष के रूप में हुए हैं जिनमें वे 10 के 10 लक्षण, एक राजा होते हुए, एक गृहस्थ होते हुए, पिता पुत्र सब, पुत्र तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक राजा होना और इतना सक्षम, समर्थ, शक्तिवान होना, पूरी सामाजिक उसके बावजूद वे अपनी मर्यादा, जिसे धर्म की मर्यादा कहते हैं, कभी नहीं छोड़ते। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें धर्म का मूर्तिमान, रामो विग्रहवान धर्म कहा है कि राम स्वयं धर्म का मूर्तिमान रूप है। तो उन लक्षणों की मैं बार बार उल्लेख करती चलूंगी, क्योंकि इस पूरे पारायण का अभिप्राय यही है ताकि हमारा समाज श्री राम के भीतर विद्यमान उन उन गुणों का, उन विशेष जो उनके व्यक्तित्व की अच्छाइयाँ और की जो एक मतलब एक अद्भुत जो उनमें है, उसका एक छोटा सा अंश भी यदि हम में से कोई ग्रहण कर सके, उस भावना से धर्म के उन लक्षणों का बार बार उल्लेख किया जाना आवश्यक है। राम में तो वे थे ही थे। वाल्मीकि कहते हैं कि वे लक्षण अयोध्या के प्रत्येक वासी में थे। यानी ये सबसे पहला, देखिए आप हैरान होंगे कि अभी यह सर्ग आरंभ हुआ है, राजा दशरथ का वर्णन आता है कि उनमें ये तीनों गुण हैं, बुद्धि से वे श्रेष्ठ हैं, वे समृद्ध हैं, और इसके साथ ही वो समाज के बारे में अगला ही श्लोक में वे कहते हैं कि समाज के सभी मनुष्य धर्मात्मा है। और फिर उनमें लोभ की भावना नहीं है। यह पारायण करना हमारा तभी सार्थक होगा यदि हम इसे केवल कथा की तरह न बांचे, न सुने और न उसके बाद कथा के सुनकर उठ जाएं। हम चाहते हैं, इसीलिए तीनों भाषाओं को साथ लेकर हम चल रहे हैं। जिसे जिस भाषा का जो शब्द अच्छा लगे, जो समझ में आए, जो सुरक्षित रह पाए जिसकी स्मृति में, उस शब्द को पकड़िए आप और उसका प्रचार प्रसार करने में हम सबके साथ सहभागी बनिए, ताकि हम अपनी नई पीढ़ियों को, अपने समाज को और सबसे पहले स्वयं को उन गुणों के थोड़े से भी अंश से समन्वित कर सकें। तो वे कहते हैं मनुष्य प्रसन्न है, धर्मात्मा है, निर्लोभी है, बहुश्रुत है। बहुश्रुत यानी उन्होंने बहुत सारे वेद पढ़े हुए हैं और अपने अपने धन से संतुष्ट हैं और सत्यवादी हैं। धर्म के जो 10 लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 लक्षण हैं धर्म के। जिस भी मनुष्य को आपको जानना हो कि कौन कितना धार्मिक है, आप इस कसौटी पर, मैं आपको हिंदी में भी बता सकती हूँ, आचार्य जी इंग्लिश में भी आपको इसकी व्याख्या कर देंगे समयानुसार। लेकिन यदि आपको किसी मनुष्य के बारे में जानना है कि वह कितना धार्मिक है, कितना अधार्मिक है, आपके पास यह इतनी अच्छी कसौटी मनु ने दी है। उसी कसौटी पर कसकर महर्षि वाल्मीकि दशरथ के समकालीन समाज को, दशरथ के राज्य के वासियों के विषय में बोलते हैं कि वे इन गुणों से समन्वित लोग हैं। जी आचार्य जी। The next verse is talking about all the citizens of the town, the city of Ayodhya. First, it is said that they are very happy. There is, and they are dharmatma. Dharma is here the righteous conduct, something that is universally acceptable and is not to be confused with sectarian religion. So when he said they are dharmatma, means every citizen is conducting himself as expected out of a civilized human being.
And as we just now heard, dharma is, Manu is saying that if somebody is leading a life in accordance with dharma, righteous conduct, then that will exhibit 10 uh, indicators. They are like he will not be angry and have patience and so on and so forth. So dharma is something, a universal dharma. We can call it as a mano dharma, humanism, so to say. So he is saying that everybody conducted himself like that. Bahushrut, Shrut you can imagine comes from Shruti. If you are hearing the Ved mantras and their meanings, you are Bahushrut. So not only Dashrath was like that, Ved here every citizen was also Bahushrut. अपने अपने धन से they are contented. If you are contented, then you don't get tempted from by the others' belongings and others' wealth. And that is what he's saying. They were not greedy. Lobe is a major culprit that causes us to deviate from dharma. Indeed, Patanjali says, Patanjali has put dharma as yama, ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, apayagya. If we maintain these five principles, then, and he's saying they are Mahavrata, Sarvabhauma Mahavrata, means they are universally desirable, universally acquired, otherwise entire human society will collapse if people don't conduct themselves in accordance with these five principles. Ahimsa, not to hurt, Satya, to be truthful, Aste, not to steal, Brahmacharya, not to see people of other gender with lust, and Apayagya, not to have a tendency to collect unnecessary quantity. And so then he says, why do we deviate from yam sometimes? Then he's saying, Lobh, Krodh, Moh, Purvaka. So Lobh is number one temptation because of which a human being deviates from dharma. So lobh here includes lust also, because lust is also an inappropriate way to collect, to obtain something. So lobh is greediness, and if you want something in an inappropriate manner, which is not due to you, that is a sense of greed. So this lobh is very important. And finally, Satyavadi, truthfulness. So that is told to us even when we graduate from Gurukul, Satyam Vada Dharmam Chaya. If we are, and Manu is also saying, Nahi Satyat Payo Dharma. So if we hold on to one singular point of being truthful, then I am always on the righteous path. So Satyavadi, if I always am truthful, if I never deviate from the path of truth, then that guarantees that I will lead a true good human life. So that's what is described is all the citizens of Ayodhya were of this kind. नाल्पसन्निचय कश्चिदासीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो ह्यसिद्धार्थो गवाश्वधनधान्यवान्। उस नगरी में ऐसा कोई पुरुष न था जो थोड़े संग्रह वाला हो। सभी गृहस्थ धन धान्य, गाय बैल और घोड़ों से युक्त थे। पशुओं का होना, अश्वपति शब्द आता है बार बार हमारे संस्कृत वांग्मय में, जिनके पास अधिक कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, शक्ति जैसे क्षत्रिय हैं तो घोड़े बहुत होंगे, और बैल कृषि के लिए है, गाय दुग्ध और उस दूध से जुड़े हुए सभी उत्पादनों के लिए। तो जहां पर पशुधन अधिक है, पशुधन में केवल गाय ही नहीं आती हैं, बाकी पशु भी आते हैं।
जिन्हें तत्कालीन समाज में पालतू पशु कहा जाता था, ये पालतू पशु थे। आज हमारे पास न वैसे घर रहे हैं, न वैसी इच्छाएं और न वैसी आवश्यकताएं कि हम इन पशुओं का पालन अपने परिवारों में, घरों में करते हों। लेकिन एक इस ऐसे समाज की आप कल्पना कीजिए जहाँ एक बहुत सह अस्तित्व की भावना है, जहाँ केवल व्यक्ति मनुष्य के रूप में स्वयं को ही इस पूरे ब्रह्मांड में महत्व नहीं देता, अपितु सभी जो प्रकृति के दूसरे उपादान है, प्रकृति का वर्णन भी आया था, पशु हैं और पंच तत्व हैं, उन सभी के प्रति मनुष्य जब सचेत होता है, सजग होता है और उनके उनके बारे में चिंतित होता है कि उनकी सार संभाल के बारे में, वही बात 3 ऋणों की जो बात आती है जब हम यज्ञोपवीत पहनते हैं, उन 3 ऋणों में इसीलिए ये सभी चीजें आ जाती हैं। यह भी क्योंकि ईश्वर की कृपा है, आपके घर के आंगन में जब पक्षी उतरते हैं तो एक प्रकार से ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही होती है आपके आंगन में। तो यह मान्यता भारतीय संस्कृति में सदा से रही है कि इन सभी का पालन पोषण करना मनुष्य का कर्तव्य है। इसीलिए हमारा समाज अहिंसक समाज कहा गया। पशुवध की बात कहीं नहीं आती है वहां, पशुओं के संरक्षण की बात कही है महर्षि वाल्मीकि ने राजा राम के समय। तो यदि हम श्री राम के चरित्र का मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा कि कुछ अंश भी ग्रहण करना चाहते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि, अब प्रत्येक विषय की व्याख्या हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि हर शब्द की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, वे केवल आपको संक्षेप में सूत्र रूप में कुछ संकेत करते चलते हैं। उन संकेतों से हमें क्या ग्रहण करना है, यह ग्रहण करने वाले की अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है और भावनाओं पर निर्भर करता है। तो जब अभी यह जैसे उन परिवारों का, उन गृहस्थियों का वर्णन आया, तो वे संकेत कर रहे हैं, यह एक गृहस्थ, अच्छे गृहस्थ का यही लक्षण है कि वह समाज में सभी का संरक्षण करे, चाहे पशु हैं या पंच तत्वों का पालन पोषण, जैसे हरियाली है, पक्षी हैं, ये सभी प्रकार के दायित्व हमारे ऊपर आते हैं। और साकेत में इस श्लोक को साकेत में मैथिली, मैंने गत सप्ताह भी कहा था, साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने इस श्लोक को बिल्कुल ज्यों का त्यों बड़े अच्छे शब्दों में कहा। कौन है ऐसा अभागा गृह कहो, साथ जिसके अश्व गौशाला न हो, धान्य धन परिपूर्ण सबके धाम है, रंगशाला से सजे अभिराम है। तो अगला श्लोक भी थोड़ा इसी तरह से आचार्य जी पढ़ें, फिर हम अगले श्लोक पर जाएंगे। As we heard about the citizens of Ayodhya with very positive virtues, now it is further described their material wealth, and then it is said that all our prosperity was there in everybody's household. And dhan dhanya, this is interesting. The material wealth is described by the word dhan and dhanya. Dhan is paddy. That's what gives rise to rice that is our staple food for everybody. And of course, if you have money, but if there is no commodity is not available in the store, then you cannot buy it. So finally, to get rid of our hunger, for our survival, we need food grain. So that is the final asset of prosperity that counts. You may have a lot of money in your bank account, but on the right day, if you don't have food to eat, you are a poor man, isn't it? In the same manner, this is described as by the words dhan dhanya, that material wealth finally translates into enough stock of food in your household. So if your household has enough food stock, you have no reason to complain. You will be a contented person. And then the wealth is in terms of assets that are animals. So in our Vedic culture, we have concept of Panchagamya Pashava. 5 animals are said to be domesticated, that every household should have it. The first is, of course, cow, then horse, then sheep,
and goat, and you will be wondering who is the fifth one. Fifth one is we human being also. So we are also called as Pashu. Pashyati iti Pashu means, we are after all an animal. But we are civilized, we are intellectually developed animal, but we can be worse than an animal, isn't it? If we don't follow dharma. So that dharma is all what makes us a good animal. So we should have all these animals. In today's world, of course, it's a mechanized world. We have all kinds of machineries, but other than that, if not for doubt, we need animal for milk. So cow is very important, and there is an implicit meaning. If a child grows in a family surrounded with these animals, a child will always look at animal as a friend, as a part of his family, as his brother, sister. No child becoming an adult will ever think of killing an animal or any kind of harm to an animal. So that was always the key principle in Aryavarta, in ancient India, to live in harmony among all the human beings, including in all the animals also. We will study it further. कामी वान कदर्यो वा निशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां न विद्वान् न च नास्तिकः। बहुत बहुत ऐसी घोषणा है, आपने इसे सुनेंगे तो। और यह व्यवस्था जो महर्षि वाल्मीकि ने राजा दशरथ के समय कही है, यह व्यवस्था राजा अश्वपति के समय तक चलती आई है। क्योंकि छांदोग्योपनिषद में एक श्लोक आता है, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नानाहिताग्निर्ना विद्वान स्वैरी स्वैरिणी कुतः। वो कहते हैं, वाल्मीकि कह रहे हैं अयोध्यापुरी में। देखिए, अब इतनी घोषणा करना, भर्तृहरि ने भी के समय भी एक घोषणा उन्होंने भी की थी कि मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी संतान की मृत्यु अपने सामने देखता है। यानी देखिए ये कितनी बड़ी इन शब्दों में छिपे हुए एक लंबी आप पूरी सोच में जा सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ राजा दशरथ का जो समाज है, जिसके वे पालनकर्ता राजा हैं अयोध्यापुरी के, कहते हैं उस राज्य में कोई भी मनुष्य कामी नहीं है, कोई भी मनुष्य कंजूस नहीं है, कोई निर्दयी नहीं है, मूर्ख नहीं है कोई, और कोई भी नास्तिक नहीं है। आचार्य जी ने अभी बताया पशुओं का प्रसंग जब आया कि जब हम सह अस्तित्व की भावना होती है, जब हम साथ साथ पलते हैं, तो कोई भी बच्चा बड़ा होकर ऐसा नहीं क्रूर हो सकता कि वह जिस पशु के साथ पला बढ़ा है उसे हानि पहुंचाए। तो उसके भीतर एक सामान्यतः अहिंसक भावनाएं भर जाती हैं, एक स्नेह और एक बड़प्पन और एक उदारता का भाव भर जाता है। और यही बात अगले श्लोक में वाल्मीकि ने भी कही है, मनुष्य कामी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इन शब्दों की किसी विशेष व्याख्या की आवश्यकता है कि कामी कौन होता है। जो काम वासना से ग्रसित है, और काम वासना ही नहीं, किसी भी पदार्थ अतिरिक्त संग्रह करने की जो भावनाएं, कामनाएं, तरह तरह की कामनाओं के वशीभूत होकर, जितनी आवश्यकता है, समृद्ध हैं आप सभी हैं, लेकिन जब जिसकी कामनाओं का अंत नहीं होता है और विवेक नहीं रहता है उन कामनाओं की पूर्ति के लिए, जैसे हमारी कोई संतान है, हम उनके लिए संग्रह करते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए भोजन की, वस्त्रों की और सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य यह भूल जाता है, कि हम भूल जाते हैं कि हम अपनी संतान के लिए संग्रह करने की इस भावना के कारण कितनी
कितने परिवारों, कितनी संतानों और कितने माता पिता के लिए दुख का कारण बन रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, इस पर बड़े विस्तार में जाया जा सकता है, किंतु उसमें हम नहीं जाएंगे। तो जब कामनाओं पर आपका वश नहीं रहता और कामनाओं के कारण आप विवेक खो देते हैं और भला बुरा की समझ खो देते हैं और उनके वशीभूत हो जाते हैं, तब आप कामी हो जाते हैं, चाहे वे कामनाएं धन से संबंधित हो, देह से संबंधित हो या कुछ भी प्राप्त करने के लिए हो। कंजूस नहीं है कोई, उदारता की बात आ गई, निर्दयी नहीं है, अहिंसक की होने की बात आई। और अहिंसक होना एक बड़ा उसका प्रचलित अर्थ चल पड़ा है, समझते हैं कि शारीरिक हिंसा करना ही, मारपीट करना, शरीर से दुख देना ही ऐसा है। लेकिन निर्दय दया ऐसी, अहिंसा और दया ऐसी बातें नहीं है। दया और अहिंसा वस्तुतः आपके भीतर की भावनाएं हैं। इसीलिए निरुक्त में आया है कि निर्वैर होना जो है, जब आप भीतर से किसी के प्रति किंचित भी वैर का भाव नहीं रखते, तब असल में आप अहिंसक हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सेना जब युद्ध करती है, किसी भी देश की सेना जब युद्ध करती है तो वह हिंसा नहीं कर रही होती, क्योंकि सेना का किसी के प्रति वैर नहीं होता, वह अपना कर्तव्य और रक्षा की भावना से, आत्मरक्षा की भावना से कर रही होती है। राम ने रावण के साम्राज्य पर जो दंड देने के लिए जो विजय प्राप्त की, वह हिंसा की भावना से नहीं थी। ना राम को इसके कारण यह कहा जा सकता है कि उन्होंने बल प्रयोग किया। तो इन तक राम के चरित्र में बार बार ये गुण आपको दिखाई देंगे कि आप उनसे बड़ी समझ ले सकते हैं, एक नई समझ विकसित कर सकते हैं यदि आप गंभीरता से विचारें। तो इसलिए निर्दयी नहीं है क्योंकि कोई हिंसक नहीं है, और मूर्ख भी नहीं है क्योंकि पिछले ही श्लोक में आया था कि वे बहुश्रुत हैं। वे बार बार वेद का पाठ सुनते हैं, वेद के मंत्र सुनते हैं, उनकी वेदों की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। और नास्तिक भी कोई नहीं है, ईश्वर पर सभी विश्वास करते हैं कि ईश्वर है और सभी इस बारे में एक मत है। आचार्य जी। We have heard positive virtues that all the citizens of Ayodhya and implicitly all the citizens of the state were possessing. Now it is being clarified that there are certain negativities that somehow enter into a human mind. They were totally absent in the minds of the citizens of the Ayodhya. So there was no person who is, so to say, is going to get tempted by what is called lust, etc. So the word is kam vasna. These are certain deposits in our mind that force us, or that kind of force tempts us to deviate into the wrong path. So the word calm is very interesting in the sense it has two meanings, and in Hindi, of course, there is a third meaning. Calm means मैं काम कर रहा हूँ, it's just some sort of activity I am engaged in. But in Vedic literature, the word calm, like it is mentioned here in this particular verse, kami vana kada, this calm is kam vasna, which is undesirable, whereas calm is also in four purusharth, dharma, artha, kama, moksha. So it has to be tallied properly in what context we are reading. For example, in the 6th month of our Ishwa Stuti Prasna Upasana, Prajapate Natvadeta, Yat Kamaste Juhumastanno. Then calm is desirable. That is our, we are intending to attain certain objectives. So these are four great objectives: Purusharth, Dharma, Artha, Kama, Moksha. Maharishi Dayanand describes in a very perfect, good manner. Dharma is what we are discussing, the righteous conduct. And what I acquire by way of dharma is called arth. And what I have acquired by way of dharma, that earth, if I enjoy it in a proper manner, it is calm. So of course, say I build a house, but I don't live in there, or I have
I have all kind of prosperity, but my health is so bad that I cannot even eat food, you know. I start vomiting. Then your ability to enjoy the wealth in an appropriate manner for your own well-being is called as calm, and we should proceed further in our life as far as our materialistic needs are concerned. So that's what propels the human society in a dynamic manner. So calm is a desirable. Calm vasana is something our enemy. So that should not, that is translated into English as lust. And that I have discussed in the context of love, in the context of greediness a while ago. So now these are negativities being listed. So nobody was inflicted with calm vasana, the undesirable thing, and he was uh, not willing to spend the money. If you earn the money and if you don't spend it, that doesn't make sense, you know. If you just hold on to it, that is not a desirable property. And they were not cruel. They had filled with love and compassion to one another as well as towards animals and birds. They were very well educated. They were not ignorant, and they were not atheist. Today we use this word in a very narrow band. If somebody says, I don't believe in Ishwar, I am Nastic. No, it's not like that. So even the so-called Astic person can be an Astic in the sense, if you just say, I believe in God, but if you don't connect with it, you know. So the ability to appreciate it. If you visit a garden and see the wonderful beauty of the nature, but that doesn't remind you of Ishwar, then you are an Astic, is it not? So if you see anything natural, beautiful, even your own body, that should connect you to that great Ishwar, to who is continuously blessing you with everything, including food, water, air for survival and good knowledge. And even this very act that you felt you should listen to Ramayana, is it not? That is also a blessing from Ishwar. So Ishwar's connectivity is your astikta. And there, citizens of Ayodhya were void of all these negativities that have been listed in this verse. सर्वे नराश्च नार्याश्च धर्मशीलाः सुसंयताः मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः। अयोध्यावासी हम थोड़ा आगे ताकि इस सर्ग को समाप्त कर सके, इसलिए थोड़ा गति से हम बढ़ेंगे। अयोध्यावासी सभी स्त्री और पुरुष धर्मात्मा एवं जितेंद्रिय थे। सभी जन प्रसन्न और चरित्र में महर्षियों के समान निर्मल थे। आप मतलब किसी समाज के चरित्र की पराकाष्ठा देखनी हो, जिनका राजा, जब राजा ऐसा होता है तो प्रजा भी इस तरह से होती है, समाज एक साथ बढ़ता है, क्योंकि हम अपने नायक चुनते हैं। समाज को अपने नायक चुनने का अधिकार होता है और समाज अपने नायक वैसे ही चुनता है। यदि आप धर्मात्मा हैं तो अपना धर्मात्मा नायक चुनेंगे, यदि समाज चोर है तो वह किसी चोर को ही अपना नायक चुनेगा, जिसे आप ग्रुप लीडर भी कह सकते हैं, हीरो कह सकते हैं आज की भाषा में। तो समाज जैसा होता है वैसे ही नायक चुनता है। लेकिन इसके साथ दूसरा भी पक्ष महत्वपूर्ण है कि यदि नायक अच्छा हो तो वह सक्षम है अपने समाज को धीरे धीरे अच्छाई की ओर बढ़ाने में, क्योंकि उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। उसके जो साथ समकालीन लोग होते हैं, नायक के चरित्र का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो जहाँ पर राजा दशरथ को के लिए कहा गया कि वे सब वेदों के विद्वान हैं, राजा दशरथ स्वयं बल में इतने इस तरह के हैं, समृद्धि में इतने ऐसे हैं विशेषण जो प्रारंभ में आए। तो जहाँ राजा ऐसा हो, रघुकुल का जो आप वर्णन पढ़ते हैं, श्री राम का जब विवाह होता है तो हमारे यहाँ परंपरा रही है कि कुल और गोत्र, सब कुल के पुराने जहाँ जहाँ है उस कुल के सभी का उल्लेख आता है, ताकि पता लगे कि
जिसका विवाह हो रहा है वह किस कुल से संबंधित है। रघुकुल के सभी राजा इतनी श्रेष्ठ मर्यादा और श्रेष्ठ आचरण वाले रहे हैं, तो जहाँ ऐसा राजा और इस तरह के आचरण वाले नायक रहे हों, वहाँ की प्रजा के लिए जब वे कह रहे हैं, यानी सभी को यह बड़ा आश्चर्यजनक लग सकता है कि समाज का प्रत्येक मनुष्य वे कह रहा है कि महर्षियों के समान निर्मल चरित्र और व्यवहार वाले प्रसन्नचित्त लोग हैं वहाँ। यह बहुत ही अद्भुत वर्णन है। इन सारी चीजों को मुझे लगता है कि बार बार सबको बताया जाना चाहिए कि जितेंद्रिय है। पिछली बार अभी काम की पीछे बात आई है, धर्मात्मा है, नास्तिकता की बात आई। उसी क्रम में रचनाकार की भी शक्ति यह होती है कि वह किस क्रम से आपके सामने वस्तुओं को, बिंदुओं को और तथ्यों को उद्घाटित करता चला जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि की कलम की और योग्यता की यह शक्ति है कि हम इसे इस रूप में ग्रहण कर पा रहे हैं। और हमने यह पाठ जो प्रारंभ किया था, फिर से याद दिलाऊंगी कि जब अयोध्या में श्री राम के स्मारक का मुक्ति पर्व हम मना रहे थे, मुक्ति पर्व तो नहीं कहना चाहिए कि उसके मुक्ति पर्व तो पहले हो गया था, लेकिन उद्घाटन जब हम कर रहे थे उनके स्मारक का, और उस दिन हमने इसका पारायण प्रारंभ किया था 8 अगस्त को। और हम कैसी अयोध्या हम बसाना चाहते हैं, और अयोध्या ही नहीं, केवल उस नगरी का ही नहीं, ये तो पूरे राज्य की बात थी। कैसा देश बनाना चाहते हैं और कैसा समाज बनाना चाहते हैं, यह एक प्रकार से महर्षि वाल्मीकि हमें एक मॉडल दे गए हैं। यदि हम इस मॉडल के अनुसार अपने आप को और अपने समाज को बना सकेंगे, तभी हमारा यह पाठ, या हम कहें कि हम श्री राम के वंशज हैं, तभी यह कहना सार्थक होगा। यदि आप में श्री राम का, हम में श्री राम का, या किसी अन्य में श्री राम के चरित्र, मर्यादा, गुणों और उन सब लक्षणों का एक अंश भी विद्यमान नहीं है, तो हम खाली नारे लगाने वाले समाज बनकर रह जाएंगे। उससे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के हृदय में श्री राम की स्थापना नहीं कर पाएंगे। श्री राम तब तक जीवित है जिस समय तक वे आपके हृदयों में, आपके गुणों में, आपके कर्मों में, आपके व्यवहार में है। जैसे माता पिता होते हैं, यदि आप माता पिता को कि उनकी मर्यादा, उनकी शिक्षा, उनके गुणों, उनके कहे हुए आदेशों या उनके पालन पोषण, उनकी इच्छाओं का पालन करते हैं, तब आप सुसंतान हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं रह जाता, आप में कोई अंश नहीं है उनका। यदि हम उनके वंशज हैं श्री राम के, तो हम में वह लेश मात्र तो आए कहीं से कहीं। Continuing with the nice virtues of the citizens of Ayodhya, they were all following the righteous conduct. They were abstaining. Jitendi means you abstain from unnecessary desires. And they were very happy. And very high virtue is mentioned as they were like Mahishis. So Mahishi is Sakshat Darshanat. So Rishi is a very high level scholars, but what is being specified is they were clean in their heart. Purity of their heart is as if they were Mahishis. So as far as they might not have scaled those high, loftier heights, but they were pure in their hearts. So that confirmed that they will always work in accordance with the Dharma. Let's have one more verse for today's session, and then we'll meet again next week. ना कुंडली ना मुकुटी ना सृग्वी नाल्प भोगवान ना मृष्टो न लिप्तांगो न सुगंधश्च विद्यते। अब फिर बता रहे हैं कि ऐसा मनुष्य भी कोई नहीं था जिसमें, अब आएंगे आगे, अयोध्या में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट और गले में माला न धारण करता हो। कोई भी
अल्प भोग वाला नहीं था, अर्थात भूखा नहीं रह रहा है कोई। ऐसी ऐसी स्थिति एक भी व्यक्ति के परिवार में या घर में नहीं है कि उसे भूखे रहना पड़े, भूखे सोना पड़े। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सफलता है किसी राजा की और शासक की। कोई ऐसा न था जो तैल, फुलेल, चंदन न लगाता हो। वहां कोई ऐसा मनुष्य भी नहीं था जिसके शरीर से अस्वच्छता के कारण दुर्गंध निकलती हो। तो दुर्गंध शरीर से तभी आती है जब आपका खान पान गड़बड़ होता है, आप अस्वस्थ होते हैं या गलत आहार विहार करते हैं। और जब ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अस्वच्छता के कारण या भीतरी खान पान की समस्याओं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जिस जो झेल रहा हो, तो एक बड़ा अर्थ है इनका। इसे किसी विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे कि आचार्य जी इसको। Now the personal and individual's physical appearance is being described. What are the peripherals on our body, what kind of clothes we put in, etc. So first thing being said is they used to have some sort of a jewelry, not only females, even males also. So you are probably familiar with our 16 sanskars, sacraments. One of them is Karn Ved sanskar. So at one time it was applicable to both boys and girls both. So there is supposed to be some benefit when your ears are pierced. So some sort of acupuncture, etc. We may not be aware of it, but probably there was something. But nowadays it is confined to girls only. But there was a time when both boys and girls went through this thing, and they would put on some sort of a jewelry here, and also on their head, and also on their neck, some sort of a necklace. So this was a very common feature among all the citizens, males and females. And there was nobody who's not contented. So if you have hunger to certain amount, you must be able to fill it up fully, is it not? Otherwise, there is a sense of unfulfillment, and that was not there. And they were always applying some oil or perfume to their body, maybe oil to their hair, and perfume to their forehead and other parts of the body. And it is being emphasized that nobody smelled due to a foul smell coming from a body. That was not to be seen, or that was not to be seen. And that usually happens if you don't take care of your personal hygiene properly. And that was not the case. Everybody was aware of that, which is a very essential part for uh, maintaining today's health. So I think today we'll be closing at this point, and we'll continue with the description of the citizens of Ayodhya. That today we have covered what are the positives they had and what were the negatives they were void of, and this part will continue next week when we meet. Thank you very much for your attention. थैंक यू, नमस्ते। अगले सप्ताह आप सबसे फिर मिलेंगे। आपका सप्ताह शुभ हो, आपके परिवारों में धन धान्य सुख समृद्धि आए, परिवारों में प्रेम बना रहे, इसी शुभकामना के साथ पुनः आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।